Hello everyone, I welcome you all on official YouTube channel of VGM ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਦੇ official YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ITT ਕੈਡਰ ਲਈ ਓਪਨ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 20 MCQ ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ 400 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 400 ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ 21ਵਾਂ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੀਡਸ ਟੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਵੰਡ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੀ ਸੈੱਲ ਵੰਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸੈੱਲ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਵੰਡ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਖੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਵੰਡ ਉਸ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ऑप्शन है जी नॉर्मल ग्रोथ, साधारण विकास। ऑप्शन बी है जी कैंसर। ऑप्शन सी है जी वूपिंग कफ की खांसी आने लग जाती है। ऑप्शन सी है जी ऑप्शन डी है जी गिगनेटिज्म कि इन्हां विचों की हुंदा, गिगनेटिज्म हुंदा है, कैंसर हुंदा है, वूपिंग कफ हुंदी है मतलब खांसी हुंदी है, या फिर साधारण विकास नॉर्मल विकास हुंदा है। तो देखो जी, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੀ ਹੈ ਸੈੱਲ ਸਾਈਕਲ ਕੀ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਆਰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਏਰਰ ਨਾਲ, ਜਨਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੈੱਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆਰਡਰ ਵਾਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਏਰਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੈੱਲ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2, ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੇਅਰ ਵਿਲ ਗਿਵ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੇਅਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ऑप्शन है जी जिंक सल्फेट एंड एल्यूमीनियम मेटल। कहते जिंक सल्फेट का सोल्यूशन ते एल्यूमीनियम मेटल। ऑप्शन बी है जी फेरस सल्फेट ते सिल्वर मेटल। कहते फेरस सल्फेट ते सिल्वर मेटल। ऑप्शन सी है जी साडे कोल मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड एल्यूमीनियम मेटल। कहता मैग्नीशियम क्लोराइड का सोल्यूशन अते एल्यूमीनियम धातु जी है वो करते हैं। ऑप्शन डी है जी सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल कि जी सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है तो कॉपर मेटल है वो करता है जी। पहला आप लास्ट में ही देख लेंगे जी, अपने को सिल्वर नाइट्रेट बनेगा जी AgNO3 प्लस आप की करना है जी कॉपर मेटल नाल कराना है। तो अपने को की बनेगा जी, देखो सिल्वर तो कॉपर की है जी ज़्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर तो कॉपर की है जी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आ की करेगी जी, इस नाइट्राइट तो अलग कर देगी। तो नाइट्रेट जो है इस आ जाएगा जी CuNO3 प्लस Ag। नॉर्मल एवं आप 2 लाने जी इतने आ जी जी अपने को फिर इक्वेशन जी सामने बन के निकलूगी। ठीक है जी, इतने नहीं कि जी जो आप सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर नाल रिएक्ट करावांगे तो की बनेगा जी, जो कॉपर नाइट्रेट है जो अपने को सिल्वर मेटल बाहर निकल जाएगी। इस कारण की है जी, आ देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होया ना जी, क्योंकि इस चीज़ तो इसने इनू डिस्प्लेस कर लिया। तो अपने को ऑप्शन नंबर डी है जी जी करैक्ट बनती है जी, ऑप्शन नंबर डी। देखो जी मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है तो इसमें एल्यूमीनियम नाल जोड़ांगे तो आ जो इसमें इस तो वक्त नहीं करेगा क्योंकि ये जड़े ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इन्होंने अंदर कोई रिएक्शन जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह जो आप आयरन सल्फेट है इसमें सिल्वर नाल करांगे तो सिल्वर घट रिएक्टिव है, सिल्वर इसमें इस तो जो अलग नहीं करेगी, सल्फेट तो अलग नहीं करेगी। तो इस अंदर भी विजय कोई रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो इसका करैक्ट आंसर बनता है जी अपने को ऑप्शन नंबर सी की है कि सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ते कॉपर मेटल जेडे है जी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है जी साडे कोल क्वेश्चन नंबर 3, The salt whose aqueous solution will have no effect on either litmus or blue litmus। कहते इन्हां विचों केड़ा साल्ट है, केड़े साल्ट का सोल्यूशन है, केड़े साल्ट दे कोल दे अंदर या फिर नमक दे कोल दा
पंजाबी ने इन्हां विचों किहड़े नमक दे घोल दा लिटमस पेपर ते कोई असर नहीं पैंदा, लिटमस पेपर ते कोई असर नहीं पैंदा। इन्हां विचों किहड़ा घोल है जिसदा लिटमस पेपर ते असर नहीं पैंदा? ऑप्शन ए जी पोटासियम सल्फेट का नहीं पैंदा, ऑप्शन बी है जी सोडियम कार्बोनेट का नहीं पैंदा, ऑप्शन सी है जी अमोनीयम सल्फेट का, या फिर ऑप्शन डी है जी सोडियम एसीटेट का। किस चीज़ का जो इस इंपैक्ट नहीं पैंदा है? तो करेक्ट आंसर है जी अपने को पोटासियम सल्फेट। पोटासियम सल्फेट जो है जी जो एक्विस सोल्यूशन बनाते हैं तो वह की होंगे जी साल्ट होंगे, एक तरह का साल्ट ही रहिंदा है, तो कोई भी इंपैक्ट नहीं पाता। जो लीला तो लाल लिटमस पेपर उस उसका कोई इंपैक्ट नहीं पैंदा है। तो वह है जी अपने को जी पोटासियम सल्फेट साडे कोल जी इसकी करेक्ट ऑप्शन है। देखो जी जो अपने को सोडियम कार्बोनेट है, जो सोडियम कार्बोनेट है जो इसमें पानी में पाओगे तो आप बेसिक न्यूट्रल देगा की देगा जी बेसिक सोल्यूशन देगा, खारी सोल्यूशन देगा, खार। ठीक है जी, खार देगा तो की करेगा जी रेड लिटमस नू ब्लू कर देगा। एलुमीनियम सल्फेट, एलुमीनियम सल्फेट जोड़ा है जी साडे कोल आ की है जी एसिड देगा, एसिड तेजाब। एलुमीनियम सल्फेट पानी के नाल मिलके की बनाएगा जी तेजाब बनाएगा, जिस कारण जोड़ा है ब्लू लिटमस पेपर की है जी साडे कोल रेड हो जाएगा, नीला की है जी लाल हो जाएगा। तीजा जी सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट जोड़ा है जी अपने कोल आ की करेगा जी आ भी इस दे नाल मिलके पानी नाल मिलके की है जी बेसिक सोल्यूशन बनाएगा, की बनाएगा जी खार बनाएगा, जिस कारण जो है लाल लिटमस नीला हो जाएगा। तो ये तीनों ही जी जो अपने को लिटमस को प्रभावित करेंगे, बट पोटासियम सल्फेट जो आप करावांगे पानी नाल किरिया तो वह की है जी एक साल्ट सोल्यूशन ही साडे कोल निकल के आवेगा, की आएगा जी साल्ट सोल्यूशन होगा, तो उसका इंपैक्ट जोड़ा है कोई भी नहीं होगा अपने को लिटमस से। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4 साडे कोल सोप्स आर फॉर्मड बाय स्पोनिफिकेशन ऑफ, साबण किस दे स्पोनिफिकेशन राही बनदियां हन, साबण किस दे स्पोनिफिकेशन राही बनदियां हन। कहते जो साबण है वो स्पोनिफिकेशन की प्रोसैस राही बनदियां ने, तो किस चीज़ का स्पोनिफिकेशन किया जाता है जिस राही साबण बनदियां हन। तो देखो जी साबण बनदियां ने जी स्पोनिफिकेशन ऑफ ईस्टर नाल, ईस्टर का स्पोनिफिकेशन करते हाँ, ईस्टर का जो आप स्पोनिफिकेशन करते हाँ तो वह सोडियम हाइड्रोक्साइड नाल मिलके किस नाल जी सोडियम हाइड्रोक्साइड नाल मिलके साबण बनाते ने, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाल मिलके जिहड़े जी सोप बनाते हैं। देखो जी की है सिंपल ईस्टर का फार्मूला की होंगे जी अपने को C2H5COOCH3 अपने को ईस्टर का फार्मूला होंगे जी। ठीक है जी, तो जो ईस्टर नाल आप मिलाने हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड तो अपने को बन के आंदा जी C2H5COONA प्लस C2H3OH, तो अपने को एक कंपाउंड बन के आते हैं जिस कारण जी कि साबण जी है जी साडे कोल बनती है, जिस कारण कि जी साडे कोल साबण बनती है, सोडियम एसीटेट जिहड़ा कि निकलता है। ठीक है जी, तो आ सी जी की सोप्स आर फॉर्मड बाय कहते साबण जी बनती है किस दे स्पोनिफिकेशन तो बनती है, तो वह बनती है जी सिंपल ईस्टर। ऑप्शन नंबर बी साडे कोल करेक्ट है जी, सिंपल ईस्टर दे स्पोनिफिकेशन नाल जी है जी साबण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 5 साडे कोल द सीड दैट कंटेन द फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड, कहते जेड़े सीड जेड़े है जी जेड़े बीज है जी फ्यूचर प्लांट हुंदा है जिन्हां दे अंदर फ्यूचर प्लांट हुंदा है उसनू की कहा जाता है, जिस दे अंदर फ्यूचर प्लांट हुंदा है उसनू की कहंदे हाँ, द सीड विच हैव द फ्यूचर प्लांट इज नोन एज। ठीक है जी, उसनू की कहा जाता है। ऑप्शन है जी अपने को ऑप्शन है जी कोटिल्डन, ऑप्शन सी है बी है जी सीड कोट, ऑप्शन सी है जी जर्म सेल, ऑप्शन डी है जी एम्ब्रोए। तो देखो जी जो फ्यूचर प्लांट होंगे है सीड के अंदर उसनू की कहते हैं जी एम्ब्रोए कहते हैं, की कहते हैं जी एम्ब्रोए कहा जाता है। कोटिल्डन बारे भी दस दें जी तुहानू बाकी पार्ट के बारे कि जी सीड का कोट होंगे सीड के उपर परत बीज की जी परत है, बीज की परत है जी बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है, बाहर लगी बाहर वाली जी बीज की परत होंगी उन्होंने कहते हैं जी कोटिल्डन कहते हैं, जी इसनू सुरक्षा प्रदान करती है। बीज की जी परत होंगी है जी बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है उसनू कहते हैं जी कोटिल्डन कहते हैं। हाँ दूजा है जी सीड कोट, सॉरी
ਕੋਟਿਲਡਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਸੀਡ ਕੋਟ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਸੀਡ ਕੋਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬੀਜ ਦੀ ਪਰਤ, ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਹੈ, ਬੀਜ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੀਡ ਕੋਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੀਡ ਕੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਟਿਲਡਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਟਿਲਡਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਬਰੋਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਬਰੋਏ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਬਰੋਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੋਟਿਲਡਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਬਰੋਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੋਟਿਲਡਨ। ਠੀਕ है जी। आ की है जी ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫਸਟ ਲੀਵ, ਇਟ ਫॉर्म ਦੀ ਲੀਵ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਲੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਜਦੋਂ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੌਦਾ ਜਰਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੌਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਕੋਟਿਲਡਨ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਬਲੈਕ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸੀਡ ਕੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਈਕੋਟਿਲਡਨ। ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਅੰਦਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਟਿਲਡਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਟਿਲਡਨ ਹੈ, ਡਾਈਕੋਟਿਲਡਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੰਬਰੋਏ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਰੂਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਰੂਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਟਿਲਡਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਰਮ ਸੈਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਰਮ ਸੈਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਰਮ ਸੈਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੌਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਇੰਬਰੋਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਬਰੋਏ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਂਟ है कि है जी, ये फ्यूचर प्लांट है किस दा जी, प्लांट दा। तो करेक्ट आंसर है जी अपने को ऑप्शन नंबर डी, एम्ब्रोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है साडे कोल, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंप्लॉइज, कहंदा जेड़ा क्लासिफिकेशन दा नेचुरल सिस्टम है वो की शो करता है। तो देखो जी, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है की, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की है जी, एक मैथड है, इज ए मैथड जेड़ा की समानता जी अलग अलग तरह की जी जातियां है जोड़े उन्होंने एनालिसिस करता है, एनालिसिस करता है जी, डिफरेंस जोड़ा है अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग जोड़े करैक्टर्स दे है उन्होंने अंदर जोड़ा परिवर्तन जोड़ा है वो कौन करता है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कि अलग अलग तरह के जीव जोड़े है, अलग अलग तरह के जीव जंतु जोड़े इस दुनिया से पाए जाते हैं, उन्होंने अंदर की समानतावां ने, की जोड़े सिमिलैरिटी ने, ते की उन्होंने अंदर विभिन्नतावां ने, ते उन्होंने समानतावां ते विभिन्नतावां के आधार पर उन्होंने वख-वख जोड़ा ग्रुप च वंडदे हां, उसनूं कहंदे आ जी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है जी। उन्होंने पूछा कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की दसदा है। ऑप्शन है जी कंपलैक्सिटी ऑफ सैल स्ट्रक्चर, कहते सैल के ढांचे की जी गुंझलता दसदा है। कंपलैक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, शरीर के ढांचे की गुंझलता दसदा है। ऑर्गेनाइजेशन बारे दसदा है, या इन्हां सारिਆਂ बारे ही दसदा है। इन्हां विचों किस बारे जिहड़ा है आपां नूं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिहड़ा जी दसदा है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस बारे दसदा है। तो याद रखियो जी, जिहड़ा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इन्हां सारिਆਂ दी गल करदा है जी, ऑर्गेनाइजेशन बारे भी दसदा है, बॉडी स्ट्रक्चर ते भी डिपेंड करता है जी, इंप्लॉय करता है, ते कंपलैक्सिटी ऑफ सैल स्ट्रक्चर ते भी करता है। तो करेक्ट आंसर है जी अपने को ऑप्शन नंबर डी, ऑल दी अबव, उपरोक्त सारे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7 साडे कोल, द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राईएटॉमिक गैस, कहते ट्राई एटोमिक गैस दी, एक ट्राई एटोमिक गैस है 3 एटम वाली गैस है, उस दे 0.1 मोल दे अंदर किन्ने एटम होणगे, उस दे 0.1 मोल दे अंदर किन्ने एटम जिहड़े है जी पाए जाते हैं। आपां ने पूछा जी 1 मोल दे अंदर किन्ने एटम पाए जाते हैं। तो देखो जी, आपां नूं पता है कि 1 मोल दे अंदर, 1 मोल के अंदर एटम होंगे जी 6.02 × 10⁻23। इन्ने मोल जो जी साढ़े को 1 मोल के अंदर पाए जाते जी, इन्ने एटम। हुण आपां ने पूछा 0.1 मोल के अंदर, 0.1 मोल के अंदर पूछे जी, तो आप 0.1 नाल गुणा करांगे तो आ बन जाएगा जी अपने को 10⁻24। ठीक है जी। देखो इनू गुणा करांगे, एक अक्षर छड़ के डेसिमल हो रहा है ना, तो आप बता दें, तो 6.02 × 10⁻24 बन जाएगा। तो हुण उन्होंने पूछा अपनों ट्राई एटोमिक 3 एटम, हुण एक गैस दे अंदर किन्ने एटम ने, 3 एटम ने, तो इसनूं की करांगे जी, आप 3 नाल गुणा करांगे तो आ गया जी 3 × 6.02 × 10⁻24। जो इनू मल्टीप्लाई करें आ बने जी 18.06 × 10⁻24। हुण देखो अपने को इत्थे की है 2 डिजिट सड़ के डेसिमल है। फिजिक्स की जिहड़े अपने साइंस के अंदर की हुंदा है जी, साइंस के अंदर आप सिंपलीकरण कहते हैं जिसनों, तो साइंस के अंदर ये ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना जी, जी डेसिमल तो अगे सिर्फ 1 डिजिट रखना है, बाकी सारे डिजिट खत्म करके उन्होंने 10 की पावर से चेंज कर देना आप। ठीक है जी, बाकी सारे डिजिट 10 की पावर के अंदर चेंज कर देना है।
हुण देखो इत्थे की सी 0.1 सी, इहनूं 10 रेज़ टू पावर नूं 0.1 नाल गुणा कीता, 0.1 नाल गुणा कीता तो 1 10 गुणा होर वध गया ना। तो हुण इहदे अंदर जे आपां इस डेसीमल नूं अगे लेके जावांगे, इस डेसीमल नूं अगे जे आपां लेके जावांगे तो अपने कोल हो जाएगा जी 10 रेज़ टू पावर 23। नहीं जी, हाँ जी, इत्थे देखो आप मल्टीप्लाई करना सी, मैं डिवाइड करता जी। 0.1 नूं 0 देखो 1 मोल के अंदर इन्ने 0.1 मोल के अंदर होंगे तो मल्टीप्लाई बाई 0.1 करांगे तो अपने को बनेगा जी 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22। ठीक है जी। हुण इहनूं आपां 3 नाल गुणा करीता, 3 नाल गुणा करन ते अपने को बनिया जी 18.06 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22। हुण देखो आपां डेसीमल नूं एक कदम इत्थे दूजी साइड लेके जा रहे हैं, हुण आपां लैफ्ट साइड लेके जा रहे हैं। जो भी डेसीमल नूं लैफ्ट साइड वाल खिसकाने हाँ तो पावर की है जी 10 की एक होर वध जाती है, तो आ जाएगा जी 10 रेज़ टू पावर 23। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी जी अपने को ऑप्शन नंबर ए 1.806 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 जेडे है उसके अंदर ट्राई एटोमिक गैस के 0.1 मोल के अंदर एटम होंगे। कितने एटम होंगे जी 1.806। नैक्सट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 8 साडे कोल द हारमोन दैट इज यूज टू कीप फ्लावर फ्रैश। कहते जेड़ा हारमोन फ्लावर नूं फ्रैश रखता है उसनूं की कहते हैं, जेड़ा हारमोन फ्लावर्स नूं जी फ्रैश रखता है वो हारमोन केड़ा है। ऑप्शन ए जी साइटोकिनिन, ऑप्शन बी है जी गिबरलिन, ऑप्शन सी है जी ऑक्सिन, ऑप्शन डी है जी एब्सिसिक एसिड। इन्हां विचों केड़ा हारमोन जेड़ा है फुल्लां नूं फ्रैश रखता है, फुल्लां नूं फ्रैश इन्हां विचों केड़ा हारमोन जेड़ा जी अपने कोल रखता है। तो देखो जी फुल्लां नूं फ्रैश जेड़ा जी अपने कोल साइटोकिनिन हारमोन रखता है। ऑप्शन नंबर ए है जी साडे कोल करेक्ट, साइटोकिनिन हारमोन जेड़ा जी साडे कोल की है जी फुल्लां नूं फ्रैश जेड़ा फ्लावर नूं जेड़ा कि जी फ्रैश रखता है, उन्हां नूं जेड़ा मुरझाण तो रोकता है। तो करेक्ट आंसर है जी अपने कोल ऑप्शन नंबर ए साइटोकिनिन हारमोन। नैक्सट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 9 साडे कोल होमोलोगस ऑर्गन है। होमोलोगस ऑर्गन विच की खासियत हुंदी है, होमोलोगस ऑर्गनां दी की खासियत है, होमोलोगस अंगां बारे दसो। सेम स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, समान ढांचा समान कम, वखरा वखरा ढांचा वखरे वखरे कम, समान ढांचा वखरा कम, समान ढांचा वखरा समान कम वखरा ढांचा। हाँ जी, सेम स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन या सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो देखो जी होमोलोगस अंग केड़े हुंदे ने, होमोलोगस वो हुंदे ने जिहड़े किसी इक्को ही एंसेस्टर तो पैदा हुंदे ने, इक्को ही एंसेस्टर तो उन्हां दा जिहड़ा पीढ़ी दर पीढ़ी जिहड़ा उन्हां दा पितर है, मतलब जिहड़ा उन्हां दा सब तो पहला उन्होंने पैदा करने वाला है वो एंसेस्टर की है जी इक्को ही हुंदा, वो इक्को ही एंसेस्टर तो जिहड़े पैदा हुंदे ने, बाद च के विभिन्नतावां कारण जिहड़े अलग अलग अगे वंडे जांदे हन। तो सेम एंसेस्टर तो पैदा होंगे ने उन्होंने की कहते हैं जी होमोलोगस कहते हैं। तो होमोलोगस के अंदर की खासियत होंगी जी उन्होंने ऑर्गन का स्ट्रक्चर ढांचा तो इक्को जिहा हुंदा है, स्ट्रक्चर तो जी इक्को जिहा हुंदा है, पर कम जेड़े है जी फंक्शन जेड़े है जी वो की है जी डिफरेंट होंगे ने, कम जेड़े है जी उन्होंने की है जी वखरे वखरे होंगे ने, ढांचा समान वखरे कम। ऑप्शन नंबर ए सी साडे कोल सही है जी, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। देखो आप गल करें तो फोर लिंब ऑफ ह्यूमन, अपने फोर लिंब ऑफ ह्यूमन एंड फोर लिंब ऑफ वेल, ये जिहड़े जिन्हां दा ढांचा अपना ते उन्हां दा सेम है, पर कम देख लो जी दोनों दे वखरे वखरे है। तो ढांचा समान होवे कम वखरे वखरे होण तो उन्होंने की कहते हैं जी होमोलोगस ऑर्गन कहा जाता है, समजात अंग कहा जाता है। समजाती अंग जिहड़ा इन्हां नूं आपां कहंदे हां, जिस दिन दा ढांचा समान कम वखरे समजात अंग कहा जाता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए लार्ज डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। कहते कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट ने बहुत दूर रखा था, बहुत दूर किया था तो आप मान लेंगे यू के जी इन्फिनिटी ते रखे, यू के जी इन्फिनिटी आ गया। इन फ्रंट ऑफ ए मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिता हुआ जी 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर के सामने कहता एक चीज़ नूं रखा गया है, एक जोड़े है आप इमेज नूं रखा गया है, किसी वस्तु नूं रखा गया है जिसकी इमेज आपको चाहिए है जी, ठीक है। तो कहता वो 60 सेंटीमीटर है जी अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने इसका मिरर का, द इमेज विल बी फॉर्मड इन द फ्रंट ऑफ मिरर। कहता इमेज जी मिरर के सामने बनेगी कितनी दूरी ते बनेगी, जी इमेज है जी मिरर के सामने कितनी दूरी ते बनेगी।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ जी u इन्फिनिटी होगा r अपने को 60 है तो जी अपने को f है जी वो की आ जाएगी जी r/2 विच इज इक्वल टू 30। लेंस फार्मूला लगावांगे जी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है जी, तो 1/v की बनेगा जी, v तो आप पता करना है, प्लस 1/∞ इक्वल माइनस द 1/30। तो इतों आ गया जी 1/∞ की होंगी 0, 1/v इक्वल माइनस 1/30, v की आ गया जी अपने को माइनस 30। हुण देखो माइनस आया इट मीनस की सामने बनी है, अगर अपने को v अपने नैगेटिव है तो इट मीनस की इन फ्रंट है, तो इन्होंने पहला इतने इन फ्रंट किया है तो आप इतने माइनस नूं नैगलैक्ट कर देंगे क्योंकि उन्होंने पहला ही कह रखा कि सामने बनेगी। ठीक है, तो v की आ गया जी अपने को 30 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर बी है जी साडे कोल करैक्ट बनती है। 30 सेंटीमीटर दूरी ते जाके उसकी फोटो जी बनेगी। वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी ते अपने को बनेगा, 30 सेंटीमीटर दूरी ते जी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इफ द पावर ऑफ लेंस L1 एंड L2 आर इन द रेशियो ऑफ 4:1। कहते दो लेंस है जिन्हों की पावर का रेशियो है जी 4:1। पावर 1 मन लेंगे हैं जी, पावर 2 का रेशियो की है जी 4:1। वट शुड बी रेशियो फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का रेशियो आप जो जी पता करना है। तो देखो जी पावर की होंगी है जी, पावर ऑफ 1 की आएगी जी 1/f1, पावर ऑफ लेंस 2 की आएगी जी 1/f2। हुण इन्हां दा आपां रेशियो करना है जी, तो आ गया 1/f1 रेशियो 1/f2, 1/f1 रेशियो 1/f2 जो आप पता करना है जी। आ बनेगा अपने को 1/f1 अपॉन 1/f2 विच इज इक्वल टू f2 अपॉन f1। आ किसी जी p1। ठीक है जी, p1/p2 कितना है जी 4/1। आ किया जी p2, तो एक है जी 4/1 आ गया। पर आपां नूं रेशियो करना है, पहला f1 चाहिए फिर f2 चाहिए, तो इनू उल्टा कर देंगे तो अपने को बन जाएगा f1/f2 इज इक्वल टू 1/4 विच इज इक्वल टू 1:4। इन्हों का रिवर्स हमेशा याद रखियो जी, जे पावर दी हुई है, पावर का रेशियो दिता है तो फोकल लेंथ का कढ़ना है। जे पावर का रेशियो दिता है तो आप जी उन्होंने रेशियो फोकल लेंथ करना है तो उन्होंने रिवर्स कर देना जी। आप की करांगे जी उस चीज़ को आप रिवर्स कर देवांगे, तो इसका करैक्ट आंसर आएगा जी अपने को ऑप्शन नंबर बी 1:4। ये जड़े जी साढ़े को 1:4 के अंदर होंगे। इन्हों का रेशियो कितना आएगा जी 1:4 आएगा 1:4। नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े कोल द सैक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कहते किसी बच्चे के लिंग बारे किस तो पता चलता है, किसी भी बच्चे के लिंग की जी पता किस तरह ही चलता है। ऑप्शन ए जी द लेंथ ऑफ मदर प्रेगनेंसी, कहते मदर के जी है गर्भ धारण काल पर डिपेंड करती है कि लंबा काल है तो जो मुंडा होएगा, छोटा काल है तो कुड़ी होगी, इस पर डिपेंड करता है। दूजा जी द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन ओव्यूलेशन एंड कोपुलेशन, कहते जो ओव्यूलेशन अंडे बनने की कोपुलेशन की जी प्रोसैस है उन्होंने विचकार जो समय है उस पर डिपेंड करता है। द प्रेजेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, कहते उसके अंदर एक्स गुणसूत्रां की गिनती मौजूदगा किन्ने एक्स गुणसूत्र उस पर डिपेंड करता है, ਜਾਂ फिर वाई गुणसूत्रां दे जिहड़ी है डिपेंड करता है। स्पर्म सैल के अंदर किन्ने वाई गुणसूत्रां उस पर डिपेंड करता है। तो पूछे जी किस ते जिहड़ा है बच्चे का लिंग जिहड़ा डिपेंड करता है, नर ते मादा होना किस चीज़ से डिपेंड करता है। तो याद रखियो जी जिहड़ा बच्चे का जो लिंग है, जिहड़ा बच्चे का लिंग है जी वो डिपेंड करता है जी वाई क्रोमोसोम ते, वाई गुणसूत्रां ते डिपेंड करता है। तो वाई गुणसूत्र कित्थों आते हैं जी मेल तो आते हैं, मेल परसन तो आते हैं। मेल के स्पर्म के अंदर जिहड़े है वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, नर के जिहड़े स्पर्म सैल के अंदर। ठीक है जी, वाई जिहड़े कोर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जे वाई क्रोमोसोम आ गया फिर एक्स वाई होएगा तो जिहड़े कि जी मेल चाइल्ड होंदा है। जे पेरेंट वालों जे फादर वालों एक्स क्रोमोसोम आंदा है तां कि जी फीमेल चाइल्ड होंदा है, क्योंकि मदर कोल तो सिर्फ ते सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होंदे ने ते उस ते जिहड़े है वो डिपेंड नहीं करता, बच्चे का लिंग जिहड़ा है मदर ते डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है जी फादर ते। उसका मेन रीजन होंदा जी पिता। इसका करैक्ट आंसर है जी प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम इन स्पर्म, के स्पर्म के अंदर किन्ने वाई क्रोमोसोम्स ने उस पर डिपेंड करता है चाइल्ड के जिहड़े लिंग कि केड़ा सैक्स है उसका, फीमेल है या मेल है। ठीक है जी, तो इसकी करैक्ट आंसर बनता है जी अपने को ऑप्शन नंबर डी। नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े कोल मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन। सूरज के नाल सूरजमुखी का फुल भी आपकी जी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। दिस इज ड्यू टू आ किस कारण होंगी है जी। ऑप्शन है जी केमोट्रोपिज्म, रासायनिक ट्रोपिज्म के कारण,
जियोट्रोपिज्म भूगोलिक ट्रोपिज्म के कारण, फोटोट्रोपिज्म प्रकाश ट्रोपिज्म के कारण, हाइड्रोट्रोपिज्म जिहड़ा है पानी दे ट्रोपिज्म के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर है जी फोटोट्रोपिज्म, प्रकाश के कारण जिहड़ा है जी वो एक जगह तो दूसरी सूरज की रोशनी के वल पिछे वाल मूँह जिहड़ा वो करता रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जी अपने को फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म के कारण की है जी सनफ्लावर जिहड़ा है आपकी जिहड़ी दिशा बदलता रहता है, आपकी जिहड़ी मूँह जिहड़ा है वो सूरज वाल जिहड़ा है बार बार चेंज करता रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जी अपने को ऑप्शन नंबर सी फोटोट्रोपिज्म। कैमोट्रोपिज्म की होंगे जी कि किसी रसायनिक प्रति किसी की संवेदना, किसी रसायन प्रति जिहड़ी संवेदना करते हैं पौधे उसनूं की कहते हैं जी कैमोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म जी धरती प्रति संवेदना, धरती के प्रति जिहड़ी संवेदना करते हैं उसनूं जियोट्रोपिज्म। प्रकाश प्रति करते हैं उसनूं कहते हैं जी फोटोट्रोपिज्म, ते पानी के प्रति करते हैं उसनूं की कहते हैं जी हाइड्रोट्रोपिज्म। तो तुहानूं पता होना चाहिए जी कैमोट्रोपिज्म रसायनिक के प्रति, धरती के प्रति जियोट्रोपिज्म, प्रकाश के प्रति फोटोट्रोपिज्म, ते पानी के प्रति जिहड़ा जी हाइड्रोट्रोपिज्म जिहड़ी है संवेदना हुंदी है। रिएक्शन जिहड़ा है हाइड्रोट्रोपिज्म तो आंदा है। पानी तो जिहड़ा हुंदा चेंज उसनूं की कहंदे हाइड्रोट्रोपिज्म कहंदे हाँ। नैक्सट क्वेश्चन है जी साडे कोल क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी एटम टोटल आर प्रेजेंट इन, इस दे अंदर किन्ने एटम हैं, इस दे अंदर हुण आपां एटम गिनने ने जी। हुण देखो जी पहला इस दे अंदर एक एटम है जी अपने कोल कोबाल्ट दा, कि इस चीज़ है जी कोबाल्ट दा। एक चीज़ ध्यान रखियो एटम गिनने से बच्चे इत्थे गलती करते हैं, वो सोचणगे आ कार्बन है ते आ ऑक्सीजन है ते एक एक जोड़ लिया, नहीं जी। याद रखियो जे ऑक्सीजन लगे होएगा तो उसका सिंबल होएगा वड्डा, पहले अखर का जिहड़ा सिंबल है कोई भी कैमिकल नूं दिखाउण लई पहला अखर जिहड़ा वो हमेशा वड्डा हुंदा है, तो इस अंदर तो वो छोटा है, इट मीनस ऑक्सीजन नहीं, आगे इस चीज़ का सिंबल है जी आ है कोबाल्ट का। तो आप जोड़ लेने किन्ने एटम है, एक एटम लगे कोबाल्ट का, प्लस क्लोरीन के किन्ने लगे ने जी 3 एटम लगे ने साडे कोल क्लोरीन दे, प्लस हाइड्रोजन के किन्ने लगे ने जी 6 2 12 एटम जिहड़े साडे कोल हाइड्रोजन के लगे ने, प्लस ऑक्सीजन के किन्ने लगे हुए ने जी, ऑक्सीजन के साडे कोल लगे हुए ने जी 6 एटम। तो हम इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़ दिंदे हैं जी, अपने कोल जोड़न ते बनया जी 22। तो इसका करेक्ट आंसर है जी अपने कोल ऑप्शन नंबर ए 22। हाउ मैनी एटम टोटल प्रेजेंट इन COCl3 6H2 के अंदर किन्ने एटम प्रेजेंट ने, तो वो है जी साडे कोल 22 एटम इस दे अंदर जिहड़े है मौजूद हैं। किन्ने एटम मौजूद हैं जी 22 एटम जिहड़े है इस दे अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने कोल क्वेश्चन नंबर 15, The book Origin of Species is written by, the book Origin of Species is written by, Origin of Species ਜਿਹੜੀ बुक है वो किसने लिखी सी, Origin of Species ਜਿਹੜੀ बुक है जी वो किसने लिखी सी। ऑप्शन ए साडे कोल डार्विन, ऑप्शन बी है जी हैकल, ऑप्शन सी है जी साडे कोल लीनियस, ऑप्शन डी है जी विटेकर। इन्हां विचों किस दी बुक है जिहड़ी है जी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक इन्हां विचों किस दी है, तो वो है जी साडे कोल चार्लस डार्विन दी। चार्लस डार्विन ने जिहड़ी है जी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जिहड़ी बुक लिखी है। तो इन्हां सारियां बारे मेरा तुहानूं दस्सिया है कि डार्विन नूं किस लिए जाने जांदा है, की खासियत है, लीनियस बारे भी दस्सिया ते विटेकर बारे भी दस्सिया है, हैकल बारे भी। ते इन्हां सारियां बारे मैं तुहानूं पिछली वीडियोज़ दे अंदर दस्सिया होया, तां तुसीं सारियां ने उहनूं कमेंट करके दसना है। इन्हां सारियां बारे कमेंट सैक्शन तो जरूर दसना है कि डार्विन नूं किस लिए जाने जांदा है, की कीता सी डार्विन ने, लीनियस ने की कीता सी, हैकल ने की कीता सी ते विटेकर ने की कीता है। इन्हां बारे आंसर एक वर्ड से 1 वर्ड 2 वर्ड आंसर तुसीं जरूर देना है कि इन्हां चारां दी प्रसिद्धि किस कारण सी, कि जिहड़े इन्हां ने सानूं देन दित्ती है, कि इन्हां ने साडे लई जिहड़ा काम कीता है। ते बुक जिहड़ी है साडे कोल जी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वो लिखी गई है जी चार्लस डार्विन राही। किस द्वारा लिखी गई है जी, चार्लस डार्विन ने जिहड़ी अपने कोल बुक जिहड़ी है लिखी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी साडे कोल क्वेश्चन नंबर 16, रिप्रोडक्शन इज असेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू, कहंदे जिहड़ा जीवित प्राणी है उन्हां दे अंदर प्रजनन, उन्हां दे अंदर प्रजनन जिहड़ा है वो जरूरी है, नवे जिहड़े है इंडिविजुअल पैदा करने जिहड़े है वो जरूरी है। क्यों जरूरी है, की रीजन है, कीप द इंडिविजुअल ऑर्गन लाइव, कि उन्हां नूं जिंदा रखने लई जरूरी है, फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, कहंदे उन्हां दी ऊर्जा की जरूरत पूरी करता है, मेनटेन ग्रोथ विकास नूं जिहड़ा है मेनटेन करके रखता है, या फिर कंटिन्यू द स्पीसीज फॉर एवर, कि जिहड़ी प्रजातियां ने उन्हां नूं लंबे समय तक हमेशा दे लई जिहड़ा कंटिन्यू करने लगातार जिहड़ा अगे चलाउण लई
आ जरूरी है। तो देखो जी रीप्रोडक्शन नवे प्रजनन नवे जीव पैदा करने का मुख्य कारण यही है कि जी स्पीसीज है जी वो लंबे टाइम तक चली जाए। जो नवे जीव नहीं पैदा होंगे तो एक टाइम ऐसे आएगा कि स्पीसीज पूरी खत्म ही हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। तो उसका मेन रीजन की है जी रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन राही जी कि स्पीसीज जी है लंबे समय तक जी है वो चलती रहती है। कोई भी प्रजाति है जी वो लंबे समय तक चलती रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है जी अपने को ऑप्शन नंबर डी, कंटिन्यू द स्पीसीज फॉर एवर। कि जी स्पीसीज है उन्होंने लगातार कंटिन्यू रखने लिए जी आपको रिप्रोडक्शन की जरूरत पैंदी है। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 17 साडे कोल, वैन इथेनॉल इज हीटेड विद अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट। कहते इथेनॉल नूं जिहड़ा है पोटासियम परमैंगनेट दे नाल आपां जदों गर्म करते हाँ इट गेट्स कन्वर्टेड इन इथेनोइक एसिड। कहता आ जिहड़ी है जी अपने कोल इथेनोइक एसिड के अंदर बदल जाती है। इन दिस रिएक्शन एल्काइन पोटासियम परमैंगनेट। कहते इस रिएक्शन के अंदर जी पोटासियम परमैंगनेट है आ किस तरह रिएक्ट करती है, किस तरह जी है जी आ रिएक्ट करती है। ठीक है जी, आ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है, कैटालिस्ट की तरह करती है, या डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करती है। आ इन्हां विचों किस तरह जिहड़ा है आपदा काम करती है। रिड्यूसिंग एजेंट पता होगा तुहानूं, लघुकरण जिहड़ा ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण वाला एजेंट, कैटालिस्ट जिहड़ा आपां विच यूज करते हैं, या फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह जिहड़ा काम करती है पोटासियम परमैंगनेट। देखो जी आपां की कीता इथेनॉल नूं हीट करना है पोटासियम परमैंगनेट दे नाल। ठीक है जी, इथेनॉल नूं किस नाल हीट करना है जी पोटासियम परमैंगनेट दे नाल आपां इथेनॉल नूं हीट करना है। तो जिस कारण की बनता अपने को इथेनोइक एसिड बनता है। इस तो साडे नाल कोल की बनता है जी इथेनोइक एसिड बनता है। तो इथेनोइक एसिड बनता है तो जिहदे अंदर पोटासियम परमैंगनेट है आ किस तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, कैटालिस्ट का करता है, या फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। पोटासियम परमैंगनेट की करता है जी एक ऑक्सीकरण कारक की तरह जिहड़ा है वो काम करता है, ऑक्सीकरण कारक की तरह काम जिहड़ा जी करता है। तो करेक्ट आंसर है जी अपने को ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी साडे कोल क्वेश्चन नंबर 18, एन एक्वस सोल्यूशन विद पीएच 0। कहते किसी जली घोल का पीएच मान 0 है, किसी जली घोल की पीएच वैल्यू 0 है, तो वह किस तरह का है, वो तेजाब है, वो अल्कलाइन खार है पानी च घुलिया होया, न्यूट्रल है, उदासीन है, या एम्फोटेरिक है कि कदे तेजाब कदे खार। इन्हां विचों की है जे पीएच 0 है। तो देखो जी जे पीएच मान 0 है तो की होएगा जी तेजाब होएगा। 7 तो थले की हुंदा है जी तेजाब हुंदा है। अपने कोल पीएच स्केल हुंदा है जी जिस ते नॉर्मली पैमाना हुंदा है 0 तो 14 तक। ठीक है जी, 0 to 14 हुंदा है। जो 7 नंबर टर्म हुंदी है जी आ हुंदी है न्यूट्रल। जो 7 दे नेड़े वो की है जी न्यूट्रल है। ठीक है, 7 तो बाद वाले साडे कोल सारे की हुंदे ने जी बेस हुंदे ने, ते 7 तो पहला वाले साडे कोल की हुंदे ने जी एसिड हुंदे ने। ठीक है जी, जे किसी जिवें जिवें आप इधर इधर जावांगे उवें में की होएगा जी स्ट्रोंग एसिड बनता जाएगा। जिवें 0 वाल जावांगे उवें ही मजबूत एसिड बन जाएगा। इसी तरह इधर वाली साइड जिवें जिवें 14 वाल जावांगे जी स्ट्रोंग बेस बनता जाएगा। बेस की है जी स्ट्रोंग हुंदा जाएगा। ठीक है जी, दोनों के अंदर उल्टा होंगे। इस दे अंदर जिन्नी वैल्यू घट उन्ना स्ट्रोंग एसिड, जिन्नी पीएच वैल्यू वध उन्ना स्ट्रोंग बेस। ठीक है जी, तो 7 की हुंदा जी न्यूट्रल हुंदा है। तो उन्होंने अपन पूछा सी कि पीएच 0 है, जे पीएच 0 है तो की होएगा, जे पीएच 0 है तो साडे कोल जी तेजाब होएगा, एक तरह का एसिड होवेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है जी साडे कोल, एन एलिमेंट कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। कहता एक एलिमेंट है जी ऑक्सीजन नाल केड़ा है रिएक्ट करता है, किस नाल करता है जी ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करता है एलिमेंट ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। कहते ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करके एक कंपाउंड दिंदा है, कंपाउंड बनांदा है, एक कंपाउंड बनांदा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट की है जी हाई है। उसका मेल्टिंग पॉइंट की है जी हाई है, अपने कोल मेल्टिंग पॉइंट की है जी हाई है। तो एलिमेंट की होएगा, इन्हां विचों केड़ा एलिमेंट होएगा। ऑप्शन ए है जी कैल्शियम होएगा, ऑप्शन बी है जी कार्बन होएगा, सिलिकॉन होएगा या आयरन होएगा। तो वो है जी साडे कोल कैल्शियम। कैल्शियम जिहड़ा है जी वो की है साडे कोल पानी दे अंदर सॉरी ऑक्सीजन नाल मिल के जिहड़ा है हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करता है तो कंपाउंड बनता है। की बनेगा जी कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट की हुंदा है जी साडे कोल हाई हुंदा है।
ठीक है जी। इसका मेल्टिंग पॉइंट की है जी साडे कोल हाई हुंदा है ते वाटर सोलूबल भी हुंदा है, पानी विच घुलणयोग भी हुंदा है। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम जिहड़ा है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच। इन्हां विचों किस दा जोड़ा गलत है, केड़ा जोड़ा जिहड़ा जी साडे कोल गलत है, सही तरह मैच नहीं है। इन्हां विचों केड़ा जिहड़ा है जी सही तरह मैच नहीं किया गया है। ऑप्शन है जी लेप्रेसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इनू कहंदे आपां कोड, कोड जिहड़ा है जी जीवाणु तो हुंदा है। ऑप्शन बी है जी एड्स जीवाणु राही हुंदा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जी। मलेरिया प्रोटोजोआ राही हुंदा है। एलिफेंटाइसिस जिहड़ा नेमेटोइड इन्फेक्शन है जी। हुण देखो तुहानूं मैं पहलां भी दस्सिआ जी कि जिहड़ा अपने कोल आ है एलिफेंटाइसिस हाथी पाओ बीमारी है जी, आ तां साडे कोल की है जी किस राही हुंदी है, नेमाटोडा दे अंदर जिहड़े है नेमाटोडा परजीवी कारण हुंदी है। तो बिल्कुल सही है जी। मलेरिया जी साडे कोल प्रोटोजोआ राही हुंदी है, आ परजीवी कारण ही हुंदी है। किहड़ा परजीवी हुंदा मलेरिया दा जी, प्लाज्मोडियम हुंदा है, उस कारण जिहड़ी फैलदी है जी। एड्स जिहड़ी है जी आ साडे कोल बैक्टीरिया राही नहीं, जीवाणु नाल नहीं फैलदी, जबकि जी विषाणु राही फैलदी है। किस राही फैलदी है जी, विषाणु राही जिहड़ा जी एड्स फैलदा है। किहड़ा विषाणु हुंदा है जी, HIV वायरस राही जिहड़ी है जी आ फैलदी है। तो एड्स जिहड़ा बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं आ है जी इसदा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 20th क्वेश्चन दा। लेप्रेसी कोड जिहड़ी है जी बैक्टीरिया राही फैलदी है, जीवाणु राही ही फैलदी है। ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी एड्स। एड्स जिहड़ी है जी अपने कोल एक वायरस डिसीज है, वायरल डिसीज है, ना कि बैक्टीरियल डिसीज है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਜੀ ਏਡਸ ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਦੀ ਏਡਸ ਡੇ, ਏਡਸ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਸਨ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪ 20 ਕੁਐਸਚਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ। प्लीज़ वीडियो ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ आ सके। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਓਨਲੀ ETT ਕੈਡਰ ਨਹੀਂ, ਓਨਲੀ ਟੀਚਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਡਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਵਗੈਰਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਡਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨੋਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾਣ, कुछ भी चीज़ जी तुम चाहते हो तो वह कमेंट सैक्शन से तुम जी जरूर कमेंट करके जाया करो। तुहाडी डिमांड नूं देखते हुए जी असीं तुहाडी जिहड़ी हर एक विश पूरी करने की कोशिश करांगे, क्योंकि तुहाडा भविख सवारना साडी जिम्मेदारी है जी। अज दे लई इन्ना ही। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर कर दिओ जी।